Good evening, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav sir, His Excellency Mr. C.B. George, Ambassador of India to Japan, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome again to this interactive session with diaspora members and Honorable Chief Minister sir. We now have a Narmada Ashtakam performed by ladies from the Madhya Pradesh Friends Association. Srimati Pooja Chaurasia, Srimati Megha Agarwal, Srimati Rajani Singhal, and Srimati Deepika Hinduja. Sabindu Sindhu Suskala Taranga Bhanga Ranjitam Dvishatsu Papa Jat Jat Kari Vari Sanyutam Krutanta Dut Kala Bhuta Bhiti Hari Varmade Tvadiya Pad Pankajam Namami Devi Narmade Namami Devi Narmade Namami Devi Narmade Tvadiya Pad Pankajam Namami Devi Narmade. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, officials from the Madhya Pradesh government, distinguished members of the Indian diaspora who have come here. I would like to start by welcoming each one of you who have joined here to welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, who is on a visit to Japan. I had the honor to receive Honorable Chief Minister yesterday, and 2 days of very important meetings he has been attending with ministers, governor, senior officials of Government of Japan, and also with chambers and Japanese business community. And I recall that in each of the meetings, we started by saying that Madhya Pradesh is the heart of India. It's a proud moment. Meet boundless opportunities. If you see, the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River. If you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. I am the heart, and I desire it all. Madhya Pradesh. I would now like to request, on behalf of everyone, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav sir, to kindly address the audience. इन्वेस्ट एमपी के आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो मैं इसको दो तरह से मानूंगा। जापान में मध्य प्रदेश के हमारे मित्रों के साथ मिलकर के आप जो हम लोग करने आए हैं, वर्षों पहले आकर के आप वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने अपनी धरती छोड़ करके जापान को अपनाया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आप सब मध्य प्रदेश वंशी कुटुंबीजन, आप सबका और भारतीय भी है ना, तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है।
तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से। तो जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है। जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है। लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल दो धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे समृद्ध काल में जी रहा है। लोकतंत्र का मतलब शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी समृद्ध सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बना हुआ मंत्रिमंडल और समर्थ मंत्रिमंडल, जो अपने सभी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के समाधान भी जानता है, और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण करने वाली सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। उस संस्था की इज्जत बचाए रखने में भी हमारा लोकतंत्र सक्षम है। अपने यहाँ भारत में मध्य प्रदेश के अंदर अगर अपना कोई परिवार का बच्चा रेडीमेड गारमेंट्स, अकेले उज्जैन के उदाहरण देता हूं, ये हमने प्रदेश भर में किया है। वो रेडीमेड गारमेंट्स पे कपड़े को केवल सिलाई मशीन पे सीने के लिए बहनें आएगी काम करने, तो मान लो 12,000 15,000 तनख्वाह है, तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपया प्रति लेबर को 10 साल तक देने की गारंटी दे रही। काम कर रहे हैं फैक्ट्री वाले के यहाँ, पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। फैक्ट्री वाले का काम, फैक्ट्री का वो अपना प्रोडक्शन से, उत्पादन से कमाए खाए, वो अपना काम करे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे रोजगार परक इंडस्ट्री चलाए। इसके पीछे भाव क्या है कि केवल मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, मशीनीकरण के पहले रोजगार चाहिए। तो रोजगार परक ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए ये सेक्टर में बता रहा हूं, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स में, और केवल इसमें 5,000 रुपये लेबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम वो जमीन की रजिस्ट्री करा रहा इंडस्ट्री की, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट दे रहे हैं। बिजली अगर कमर्शियल 8 रुपए में पड़ रही तो हम 10 साल तक 4 रुपए में दे रहे हैं। एक से सब मिला करके वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में 200% की छूट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर ये व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी, आपके परिवार में भी बदलाव आने की दृष्टि से भी, बदलते समय में हम सब इनको खुली आंखों से देखें, इसको लागू करें, तो हम में से सब मिलकर के अपने देश के लिए भी, और जहां रहे उसको भी बढ़ाते रहो। जापान को भी आगे बढ़ाओ, अपना देश भी आगे बढ़े। ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।